Dear students, today our topic is chapter 3 of standard 8, indices and cube roots. Now you have learnt in the previous standards that 3 into 3 into 3 into 3, this can be written as 3 raised to 4, where 3 is the base and 4 is the index. 3 is the base and 4 is the power or index. It is the power or index, and 3 raised to 4, this is in the index form. It is in the index form, and this is its expansion form, 3 into 3 into 3 into 3. It is 3 raised to 4. If the number in the index form, if that number is suppose 6 raised to 5, then this can be written as 6 into 6 into 6 into 6 into 6, 5 times. So again 6 raised to 5 is the index form, where 6 is the base and 5 is the index, 6 raised to 5. Now before starting practice set 3.1, let's revise the laws of indices which you have learnt in the standard 7th. So laws of indices, the first law is a raised to m multiplied by a raised to n equals to a raised to what. Now here अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि a and b, these are any rational numbers. Number a and b, these are any rational numbers, means it may be positive numbers, negative numbers, fractions, etc. It may be 0. So a and b are any rational numbers, and m and n, these are integers. m and n are integers. इंटीजर्स में कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 and so on. So m and n powers are any integers, and a and b are, these are the rational numbers. Now the first law, a raised to m multiplied by a raised to n equals to a raised to dash. तो इस लॉ में क्या है कि अगर दो नंबर्स में बेस सेम है, दो नंबर्स का बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, देन एंड पावर्स आर डिफरेंट और द पावर्स में बी सेम, देन व्हाट वी डू, वी ऐड द पावर्स. सो दिस विल बी, द लॉ सेज इट विल बी m plus n. If a raised to m multiplied by a raised to n, then we can write a raised to m plus n. There will be addition of powers. Example, 3 raised to 5 and multiplied by 3 square, then 3 raised to what? Now as per this formula, numbers have same base and there is multiplication operation, then we do the addition of indices. So this will be 5 plus 2, and that is equal to 3 raised to 7. दिस इज द आंसर, 3 raised to 7. तो ये हो गया पहला लॉ. सेकेंड लॉ, a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n. और पहले नंबर में उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन है. तो दिस वी राइट a raised to m माइनस n. पहले इंडेक्स में से दूसरा इंडेक्स माइनस होगा. सो इट्स एग्जाम्पल इज 3 raised to 7 डिवाइडेड बाई 3 raised to 9. तो आंसर क्या होगा? 2. नो, 2 विल बी नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सेकेंड इंडेक्स फ्रॉम द फर्स्ट. तो 7 minus 9 एंड दैट इज इक्वल टू 3 raised to -2. 3 raised to -2. So this is the answer. First index minus second index if there is division operation. अगर यहाँ पे बेस सेम नहीं होंगे फर्स्ट और सेकंड में, तो ये लॉस अप्लाई नहीं होंगे, बेस सेम होने चाहिए. थर्ड नंबर, a मल्टीप्लाइड बाय b होल रेज टू m, होल ब्रैकेट रेज टू m. तो दिस विल बी, इस केस में क्या होगा, जो पावर है वो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड हो जाएगा, मतलब पावर दोनों को अलग अलग आ जाएगा. सो दिस विल बी a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू m.
its example is 5 multiplied by 7 bracket raised to 3, so whole raised to 3, so this will be 5 cube multiplied by 7 cube. दोनों को पावर अलग अलग सेपरेट हम दे सकते हैं. अब ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे बेसिस के बीच में प्रोडक्ट था, मल्टीप्लिकेशन था. अगर डिवीज़न होगा तो भी हम वैसे ही पावर को सेपरेट अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है. तो इट विल बी a रेज टू m अपॉन b रेज टू m. सो इट्स एग्जाम्पल इज 5 अपॉन 7 ब्रैकेट रेज टू 4, सो दिस विल बी 5 रेज टू 4 अपॉन 7 रेज टू 4. नेक्स्ट है a रेज टू 0 इक्वल्स टू 1. ज़ीरो पावर ऑफ एनी नॉन ज़ीरो नंबर, तो ज़ीरो को छोड़ के और किसी भी नंबर का ज़ीरो पावर होगा 1. सो 7 रेज टू 0, द आंसर इज़ 1, ओनली 1. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि 7 रेज टू 1 करते हैं और 7 रेज टू 1 का मतलब है 7. ये गलत है. तो अगर 7 रेज टू 0 आपने लिखा 7 रेज टू 1, तो दैट्स रॉन्ग बिकॉज इट्स वैल्यू इज 7. ये किसका आंसर है ये? तो अगर आपने 7 रेज टू 0 इक्वल्स टू 7 रेज टू 1 और 7 लिखा तो ये रॉन्ग है, क्योंकि उसका करेक्ट आंसर है 7 रेज टू 0 इक्वल्स टू ओनली 1 आएगा आंसर. अब आगे मूव करते हैं. a रेज टू नेगेटिव m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू m. इसका मतलब है कि अगर जब किसी नंबर को न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र किया जाएगा या डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो जो पावर है या इंडेक्स है उसकी साइन चेंज होगी. अगर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव साइन हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी. इट्स एग्जाम्पल इज 6 रेज टू नेगेटिव 3, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 रेज टू 3. तो पावर की साइन सिर्फ चेंज होगी. नेक्स्ट 6 नंबर है पावर ऑफ पावर. तो ये लॉ क्या है? इफ़ देर इज पावर ऑफ पावर देन विल डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स. सो a रेज टू m मल्टीप्लाइड बाय n, m मल्टीप्लाइड बाय n. इट्स एग्जाम्पल 4 स्क्वायर एंड होल रेज टू 5, 4 स्क्वायर एंड ब्रैकेट रेज टू 5, सो दिस विल बी 4 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 रेज टू 10. So 10 is the answer, 4 raised to 10. नेक्स्ट ये हमने पहले ही समझ लिया है. एंड a अपॉन बी ब्रैकेट रेज टू नेगेटिव m. तो a अपॉन बी का b अपॉन a क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको मालूम है कि यहाँ पे a न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है. ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो इसकी साइन अगेन जो रेज टू नेगेटिव पावर इज नेगेटिव m, सो हेयर द पावर विल बी पॉजिटिव m. अगेन उसका एप्लीकेशन हम देखें तो 5 अपॉन 7 होल रेज टू नेगेटिव 3, सो दिस कैन बी रिटन एज 7 अपॉन 5 एंड होल रेज टू 3. साइन विल चेंज इफ द बेसिस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके. तो एक बात यहाँ पे जो ध्यान में देखनी है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ही पावर्स जो हैं वो सेपरेट हम दे सकते हैं, ईच बेस को या ईच नंबर को. अगर बीच में उनका एडिशन होगा, एग्जाम्पल सपोज ये 2 + 5 एंड होल क्यूब, सो यू कांट राइट कि दिस इज इक्वल्स टू 2 क्यूब + 5 क्यूब. दिस विल नॉट बी करेक्ट बिकॉज पावर कैन बी डिवाइडेड ओनली इफ देयर इज डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. ये अलग अलग बेसिस हैं, तो आप एक बार उसको फिर से रिवाइज करिए और अलग अलग एग्जाम्पल्स सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए. अब स्टूडेंट्स ये जो है मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसिस. तो रैशनल इंडाइसिस का मीनिंग क्या है और उसका जो उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट 3.1. इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने के पहले या इस बात को समझने के पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो आपने 7th में सीखा हुआ है. तो मुझे बताइए व्हाट इज़ 2 स्क्वायर. 2 square means 2 into 2, that is equals to 4. What is 3 square? 3 into 3, this is equals to 9. What is 5 square? 5 5s are
25, 9 square, 9 9 81। अब ये जो स्क्वायर्स है ना, ये आप 25 तक एटलीस्ट लर्न कर लीजिए, तो ये आपको आगे काम में आएंगे। 9 स्क्वायर, 9 9 81। नाउ व्हाट इज 2 क्यूब? So 2 cube means 2 into 2 into 2, and that is equals to 8. 2 cube is 8. 3 cube, 3 into 3 into 3, that is equals to 27. And 6 cube, 6 into 6 into 6, that is equals to 216. तो अब हम ये क्यों समझ रहे हैं? तो अब आपको ये बात तो मालूम है, आपको ये भी याद होगा कि if 2 square is 4, तो हाउ टू राइट द स्क्वायर रूट ऑफ 4? तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज रिटन इन दिस वे, स्क्वायर रूट ऑफ 4। हेयर ये जो साइन दे रहे हैं हम, दिस साइन इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। ये जो साइन है इसको कहते हैं रेडिकल साइन। तो ये आपको मालूम होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट, इफ 2 स्क्वायर इज 4 देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। 3 स्क्वायर इज 9, हाउ टू राइट स्क्वायर रूट ऑफ 9? Square root of 9 we write like this, square root of 9 is 3. 5 square is 25 and square root of 25 is 5. 9 square is 81, square root of 81 is 9. 2 cube is 8. अब 8 का क्यूब रूट कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट क्यूब रूट ऑफ 8? दिस इज रिटन इन दिस वे। तो यहाँ पे जब 2 स्क्वायर रूट लिख रहे थे तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्हेन वी राइट क्यूब रूट ऑफ 8, हेयर वी राइट 3। सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज अगेन 2. 2 क्यूब इज 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 8 इज अगेन 2. क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 एंड क्यूब रूट ऑफ डैश इज 6. तो किसका क्यूब रूट है 6? 216. अब हमें समझना है कि ये जो हम स्क्वायर रूट्स लिख रहे हैं या पावर लिख रहे हैं, इनको रैशनल इंडाइसिस में कैसे लिखा जाए? इसको लिखने का और एक मेथड है, स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसको लिखने का और एक मेथड है, वो है 4 रेज़ टू 1/2। 4 रेज़ टू 1/2। यहाँ पे जो पावर था वो इंटीजर पावर था, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो रैशनल नंबर है। तो दिस इज कॉल्ड रैशनल इंडेक्स, रैशनल इंडेक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लिखने का और एक मेथड है 4 रेज़ टू 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कैसे लिखेंगे? यूजिंग इंडेक्स फॉर्म, यूजिंग रैशनल इंडेक्स। तो ये होगा रेज़ टू दिस विल बी 1/2, 9 रेज़ टू 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 25 कैसे लिखेंगे? 25 रेज़ टू 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 81 रेज़ टू 1/2। क्यूब रूट ऑफ 8 कैसे लिखेंगे? 8 रेज़ टू 1/3। क्यूब रूट ऑफ 27 रेज़ टू 1/3। क्यूब रूट ऑफ 216 रेज़ टू 1/3। तो these are the numbers with rational indices. तो रेज़ टू 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट एंड रेज़ टू 1/3 मीन्स क्यूब रूट। अब आगे हम देखते हैं, तो उस सब में से हम क्या सीखें? इन जनरल स्क्वायर ऑफ ए इज रिटन लाइक दिस, ए स्क्वायर ऑफ ए इज रिटन लाइक दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए इज रिटन लाइक दिस। Similarly, cube of a is written like this, a cube, and cube root of a is written like this, cube root of a. Here this sign is the radical sign. Okay, now अब आप मुझे बताइए what is the meaning of this 36 raised to 1/2? तो its meaning is square root of 36. Now what is the meaning of 49 or I say suppose 27 raised to 1/3? So its meaning is cube root of 27. Now what is the meaning of this number? Suppose
I write any number. Suppose I write 100 n raised to 1 upon 5. So what is the meaning of this number? It means fifth root of 100. This was square root of 36, this was cube root of 27, and this is fifth root of 100. When I write suppose any number 81 raised to 1 upon 6, so this is sixth root of 81. Okay, so this is the meaning of numbers with rational indices. So now let's start practice set 1.3. Now let's start practice set 1.3. So the first question is express the numbers in index form. Now the first question is fifth root of 13. So how will we write fifth root of 13? So we write the base, that is 13, and index is fifth root. So we will write 1 upon 5. 13 raised to 1 upon 5. This is the index form. Number in index form 13 raised to 1 upon 5. Sixth root of 9. तो पहले हम बेस लिखेंगे 9 और अब इसका सिक्स रूट. सो दिस इज रेज टू 1 अपॉन 6. 9 रेज टू 1 अपॉन 6. सिक्स्थ रूट ऑफ 9. स्क्वायर रूट ऑफ 256. नंबर इज 256 एंड स्क्वायर रूट, तो विल राइट रेज टू 1 अपॉन 2. एट्थ रूट ऑफ 100. सो विल राइट 100 रेज टू 1 upon 8. Now question number 2. Write in the form nth root of a. फर्स्ट क्वेश्चन में nth root of a वर्ड्स में लिखा हुआ था, हमने उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखा. अब ये इंडेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, उसे हमें लिखना है nth root of a वाले फॉर्म में. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस नंबर? 81 raised to 1 upon 4. This is the fourth root. This is fourth root of 81. Now 49 raised to 1 upon 2. So what is the nth root of a? क्या फॉर्म होगा ये? स्क्वायर रूट ऑफ 49. स्क्वायर रूट ऑफ 49. How to write this number in nth root of a form? What is the root? Fifth root of 15. Fifth root of 15. Now 27 raised to 1 upon 3. This is थर्ड रूट नहीं लिखते, इसको लिखेंगे क्यूब रूट. क्यूब रूट of 27. Okay, in this way you have to complete practice set 1.3.